Assalamualaikum class, hope you all are fine. Today we'll do Hazrat Asma's exercise. First we have cataphoric reference and anaphoric reference. Cataphoric reference. An expression that refers to a later expression in the discourse is called a cataphoric reference. For example, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam and his companion Hazrat Abu Bakr Siddiq migrated from Makkah to Medina in the year 622 AD. लेटर एक्सप्रेशन यानी जो बाद में मेंशन नेम होते हैं उसको पहले ही रेफ़र कर दिया जाता है, रेफ़र पहले कर देते हैं लेकिन नेम्स बाद में मेंशन होते हैं. हिज़ कंपेनियन, हु इज़ हिज़ कंपेनियन? हज़रत अबू बकर सिद्दीक इज़ हिज़ कंपेनियन. बाद में जो जिन चीज़ों को हम रेफ़र करते हैं जो बाद में मेंशन होती हैं उसको कैटाफोरिक रेफरेंस कहते हैं. नेक्स्ट वी हैव एनाफोरिक रेफरेंस. An expression that refers to an earlier expression in the discourse is called an anaphoric reference. Hazrat Asma was amongst the early few who accepted Islam. She was the daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq. यहाँ पे she anaphoric reference है. Anaphoric reference refers to earlier expression. Earlier यानी पहले जो mention हो चुका है. तो हज़रत अस्मा पहले मेंशन हो चुका है और बाद में उनको रेफ़र किया जा रहा है. बाद में जो प्रोनाउन यूज़ किया जा रहा है उनके लिए वो एनाफोरिक रेफरेंस है. सो कैटाफोरिक इज़ फॉर लेटर एक्सप्रेशन, यानी लेटर एक्सप्रेशन यानी जो बाद में नेम मेंशन होगा. हिज कंपेनियन के बाद कंपेनियन का बताया जा रहा है कि कौन कंपेनियन है. और एनाफोरिक रेफरेंस में पहले नेम मेंशन हो जाता है और यहाँ पे बाद में उस बंदे को रेफ़र किया जा रहा है, नेम पहले मेंशन हो गया है. Tell whether the reference given in these sentences is anaphoric or cataphoric. Number 1. Abu Jahl, the chief of the disbeliever, in a fit of fury headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq's home. He began knocking at the door violently. Abu Jahl name पहले mention हो गया है तो ये anaphoric है. The chief of the disbeliever in a fit of fury, और यहाँ पे फिर उनके बारे में बात की जा रही है कि he began knocking. Who began knocking? अबू जहल पहले मेंशन हो चुका है तो दैट इज़ अर्लियर एक्सप्रेशन. ये पहले मेंशन हो चुका है तो ये एनाफोरिक है. हर ग्रैंड फादर, हु इज़ ग्रैंड फादर? अबू कुहाफा वॉज अ डिसबिलीवर एट दैट टाइम. हर ग्रैंड फादर इज़ कैटाफोरिक रेफरेंस क्योंकि दिस इज़ लेटर एक्सप्रेशन. लेटर एक्सप्रेशन मीन्स नेम बाद में मेंशन हो रहा है, सो दिस इज़ कॉल्ड कैटाफोरिक रेफरेंस. व्हेन असलम वॉज प्लेइंग क्रिकेट ही हर्ट हिज हैंड. He hurt his hand. Who hurt his hand? Aslam. And we have already mentioned Aslam. This is earlier expression. Aslam पहले mention हो चुका है, बाद में हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो this is anaphoric reference. Before she finished the work. Before who? Neelam. बाद में हमने mention किया है. Neelam checked the mistakes once again. Before she finished the work, Neelam checked the mistake once again. So this is cataphoric reference because Neelam is mentioned later. This is later expression. So this is cataphoric reference. Anis threw the stone. He broke the window. Anis, he broke the window. Who broke the window? We have mentioned the who broke the window. Anis threw the stone and he broke the window. So this is anaphoric reference. This is reference to an earlier expression. This he is your anaphoric reference. When she entered the room, Zeba was surprised to see so many guests. When who entered? Zeba. This is cataphoric reference because this is later expression. Okay, next one is a bit tricky. The city of gardens, Lahore, is also famous for its historical places. The city, which city we are talking about? So this is cataphoric reference Lahore. This is the later expression. The city, we refer to this city, is also famous for its historical places. Its historical places is anaphoric reference. We are referring to Lahore. This is an earlier expression. So here we have cataphoric reference and anaphoric reference both in the same sentence. So this topic is all done. Next we have exercise A. Choose the correct meaning of the underlined words. It was so delicate situation. Delicate means बहुत नाजुक सूरत हाल थी. तो इसका सिनोनिम क्या डिफ़िकल्ट हो सकता है? नहीं, डिफ़िकल्ट तो नहीं थी, नाजुक थी. इट वॉज सेंसिटिव काइंड ऑफ सिचुएशन. इट वॉज नॉट एन ईजी. डेलिकेट मतलब बहुत इस तरह की सिचुएशन थी, अगर ज़रा सा भी कुछ
मतलब मिस्टेक हो जाती तो बात बिगड़ सकती थी। ईजी तो बिल्कुल भी नहीं थी। सेंसिटिव नहीं। फ्रजाइल, फ्रजाइल बेसिकली हम कहते हैं वीक को। फ्रजाइल सिचुएशन, बहुत नाजुक। फ्रजाइल नाजुक को कहते हैं इट वॉज डेलिकेट सिचुएशन, सो फ्रजाइल इज करेक्ट आंसर। अबू जहल बिगैन नॉकिंग एट द डोर वायलेंटली, वायलेंटली मीन्स गुस्से से, गुस्से से, बहुत ज़्यादा गुस्से में। पोलाइटली, नो, पोलाइटली इज़ नॉट द आंसर, इज़ नॉट द सिनोनिम। इसका सेम मीनिंग पोलाइटली नहीं है। स्लोली भी नहीं है, वायलेंटली गुस्से से होता है। फोर्सफुली भी नहीं है, फोर्स का कोई भी जिक्र नहीं है, गुस्से का जिक्र है यहाँ पे। एंग्रीली, एंग्रीली यानी एंग्री का मतलब भी गुस्से से है, तो एंग्रीली इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ वायलेंटली। शी सिंपली पोज्ड अ काउंटर क्वेश्चन दैट इन्फीरिएटेड अबू जहल। इन्फीरिएटेड मतलब गुस्सा दिला दिया, बहुत ज़्यादा गुस्सा उनको दिला दिया। प्लीज्ड का मतलब खुश होना होता है। काउंटर क्वेश्चन ने उनको खुश किया था? नहीं। हेल्प, काउंटर क्वेश्चन ने हेल्प भी नहीं की। इनरेज्ड और अनोइंगली, अनोइंग मतलब तंग कर दिया था उनको, ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि बहुत गुस्सा दिला दिया था। इनरेज्ड का मतलब होता है बहुत गुस्सा आना। तो क्वेश्चन दैट इन्फीरिएटेड अबू जहल यानी इनरेज्ड आपका सही है। उन्होंने ना तंग किया था, ना खुश किया था, ना हेल्प की थी उनके क्वेश्चन ने, बल्कि बहुत गुस्सा दिला दिया था। नेक्स्ट, शी रिमेन स्टेडफास्ट एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट। स्टेडफास्ट मीन साबित कदम रही। शी डिड नॉट गेट कन्फ्यूज, कन्फ्यूज़ नहीं हुई, और उन्होंने बिल्कुल भी ये थॉट उनके जहन में नहीं आई कि वो अपना सीक्रेट रिवील करेंगी। साबित कदम, शी वॉज कंसिस्टेंट, वो अपने इरादे पे कायम थी। पेशेंट का मतलब तो सब्र होता है, सब्र भी इसका मतलब नहीं है। रेडी टू फेस भी नहीं है। रेडी टू फेस तब होती है जब वो बता देती और उनका कॉन्सिक्वेंसेस अबू जहल के फेस करने के लिए रेडी होती, ये भी गलत है। प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट भी तब होता है जब वो जान जाती है कि अबू जहल को उनके बारे में पता लग चुका है, तब वो प्रिपेयर करती है खुद को वर्स्ट के लिए। फर्म एंड रेजोल्यूट, येस, फर्म एंड रेजोल्यूट इज़ द करेक्ट आंसर, इज़ द करेक्ट मीनिंग, इज़ द सिनोनिम ऑफ स्टेडफास्ट। फर्म एंड रेजोल्यूट का भी मतलब होता है साबित कदम रहना, कंसिस्टेंट रहना और अपने इरादे पे कायम रहना, और उनका इरादा था कि शी विल नॉट रिवील द सीक्रेट एंड शी डिड अकॉर्डिंगली, शी डिड नॉट रिवील द सीक्रेट, शी रिमेन्ड स्टेडफास्ट, शी रिमेन्ड फर्म एंड रेजोल्यूट। Next we have, consult a dictionary to find the meanings of the following words, phrases and use them in sentences. I've already sent meanings and sentences in written form. Do this question on your notebooks. Mad with anger means गुस्से से पागल होना, very angry. I've already sent sentences of these words. Fit of fury, ये सारे वर्ड्स आपके चैप्टर में भी हैं। इन अ फिट ऑफ फ्यूरी, इन एन एक्सट्रीमली एंग्री वे, बहुत हद तक गुस्से में। इन अ फिट ऑफ फ्यूरी कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं। इस चैप्टर में वी हैव रेड दैट इन अ फिट ऑफ अबू जहल इन अ फिट ऑफ फ्यूरी स्लैप्ड हजरत अस्मा's फेस, उन्होंने उनके फेस पे थप्पड़ मारा इन अ फिट ऑफ फ्यूरी, क्योंकि वो बहुत गुस्से में थे। Reveal the secret, this is very easy. Reveal means disclose the secret, secret किसी को बताना, this is the meaning of reveal the secret. Resolute, firm, steadfast जिसको हम कहते हैं साबित कदम रहना, so firm is the meaning of resolute. Alleviate means relax, relieve होना, किसी भी relieved, किसी भी रिलैक्स होना, आरामदेह हालत में आना, किसी भी। फॉर एग्जांपल, यू हैव अ सिचुएशन, आपको पता लगता है कि आपका फ़ोन चोरी हो गया है और फिर आपको आपका फ़ोन मिल जाता है एंड यू आर रिलीव्ड नाउ, यू आर रिलीव्ड टू नो दैट यू हैव फाउंड योर फ़ोन, सो यू आर एलिवेटेड नाउ, यू गॉट एलिवेटेड आफ्टर नोइंग दैट यू हैव फाउंड योर फ़ोन। माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, हिजरत करना, हिजरत करने को माइग्रेशन कहते हैं। कंपेनियन, फेलो को बोलते हैं, साथी को बोलते हैं, दिस इज़ वेरी इजी। रेफ्यूज, रेफ्यूज मीन टू शेल्टर, पनाह लेना, कहीं भी किसी सेफ प्लेस पे, प्लेस ऑफ सेफ्टी जहाँ पे आपके दुश्मनों का आपको कोई ख़तरा नहीं होता। गेव अवे, गेव का मतलब देना, अवे मतलब सब कुछ, जितना जो भी आपके पास होता है। लाइक वी हैव रेड इन द चैप्टर, हज़रत अस्मा गेव अवे ऑल ऑफ हिज वेल्थ टू ऑल द पुअर्स, तो गेव अवे का मतलब होता है टू गिव एवरीथिंग। डिटर्मिन्ड, डिटर्मिन मीन रेजोल्यूट, किसी भी काम को करने के लिए पुरजोश होना, साबित कदम रहना, कंसिस्टेंट होना। डिटर्मिन का मतलब भी रेजोल्यूट होगा, आप डिटर्मिन्ड है कुछ करने के लिए, साबित कदम है, आप अपने इरादे के पक्के हैं, दिस इज कॉल्ड
determined. That's all for today. We'll do rest of the exercise tomorrow, inshallah.